Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in computer, our today's topic is MS PowerPoint, graphics and multimedia. So let's start the chapter. Our learning objectives are slide layout, inserting tables, inserting charts, inserting smart art graphics, inserting pictures, inserting video, inserting audio, inserting icons and 3D models. You are familiar with various slide views and their uses in PowerPoint. Now let us learn about various slide layouts, graphics and multimedia features of PowerPoint. बच्चों, पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम कैसे अपने स्लाइड के व्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या यूज़ है। लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे वेरियस स्लाइड लेआउट्स के बारे में, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया फीचर्स के बारे में। सबसे पहला स्लाइड लेआउट्स. Slide layouts is the arrangement of all the objects on a slide. Slide layouts can contain formatting of text, tables, charts, smart art graphics, pictures, online pictures, video, icons and 3D models. There are 9 basic slide layouts in MS PowerPoint. They are described below. तो बच्चों, यहाँ पे आज हम जानेंगे स्लाइड लेआउट्स के बारे में। सबसे पहले स्लाइड लेआउट जो होता है वो एक तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जितने भी आपके स्लाइड्स होते हैं उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, अब चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई इमेज हो, फोटो हो, ठीक है, तो उनके अरेंजमेंट को हम स्लाइड लेआउट के थ्रू ही अरेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 9 बेसिक स्लाइड लेआउट है, कहाँ पे? MS पावरपॉइंट में। या यूँ कहनो कि MS पावरपॉइंट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 9 स्लाइड्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है। दे आर डिस्क्राइब बिलो। सबसे पहला टाइटल स्लाइड. दिस इज यूज्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन और टू डिवाइड सेक्शन ऑफ योर प्रेजेंटेशन. सेकेंड, टाइटल एंड कंटेंट. दिस इज अ डिफ़ॉल्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्लाइड लेआउट. It is used to give topic and its content. Third, section header. This slide types is used to separate different sections of the same presentation rather than using an additional title slide. It can also be used as an alternate to the title slide layout. Fourth, to content. This slide layout is used if you wish to show text in addition to a graphic content type. Fifth, comparison. It is similar to the two content slide layout, but this slide type also includes a heading text box over each type of content. This type of slide layout is used to compare two types of the same content type. For example, two different charts show text in addition to a graphic content type. Sixth, title only. This slide layout is used if you want to place only one title on the page rather than a title and a subtitle. You can then insert other types of objects such as clip art, word art, pictures or charts if desired. Seventh, blank. A blank slide layout is often used when a picture or other graphic objects that need no further information will be inserted to cover the whole slide. Eighth, content with caption. This layout is used to place content, most often a graphic object such as a chart or picture, on the right side of the slide. The left side is used for a title and text to describe the topic object. 9. Picture with caption. The right part of the slide is used to place a picture. The left side is used for a title and text to be described the topic picture. ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको अलग अलग जो आपके लेआउट होते हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहला टाइटल स्लाइड. ये आपकी स्टार्टिंग स्लाइड होती है, ठीक है। ये आपके स्टार्टिंग ऑफ प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। या फिर ये आपके प्रेजेंटेशन को क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टाइटल एंड कंटेंट. ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके क्या होता है? मोस्टली यूज़ लेआउट को दिखाता है, ठीक है। और ये यूज़ किया जाता है ताकि आप उसमें अपने टॉपिक या फिर उसके कंटेंट को दिखा सको. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन हेडर, ठीक है। ये स्लाइड टाइप है, ये यूज़ किया जाता है आपके सेक्शन को सेपरेट करने के लिए. जो आपके डिफरेंट सेक्शन होते हैं सेम प्रेजेंटेशन के, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका टू कंटेंट। ये जो स्लाइड लेआउट है ये यूज़ किया जाता है आपके टेक्स्ट को शो करने के लिए इन एडिशन टू अ ग्राफिक कंटेंट टाइप। फिफ्थ होता है आपका कंपैरिजन, ठीक है, ये सिमिलर होता है आपका टू कंटेंट से ही, जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन था उसी के सिमिलर होता है ये, लेकिन ये जो स्लाइड टाइप है ये इंक्लूड करता है आपके हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स ओवर ईच टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये जो टाइप का स्लाइड लेआउट होता है ये यूज़ किया जाता है आपके दो जो सेम कंटेंट के जो टाइप होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन दिखाने के लिए, और ये आपके टेक्स्ट को इन एडिशन टू अ ग्राफिक कंटेंट टाइप को भी क्या करता है, ये शो करता है। सिक्स्थ, टाइटल ओनली। ये जो स्लाइड लेआउट है ये यूज़ किया जाता है अगर आप प्लेस करना चाहते हो कोई भी टाइटल अपने पेज पे, तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें आप इंसर्ट कर सकते हो अदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, पिक्चर्स और चार्ट्स इफ़ डिज़ायर्ड, ठीक है। नाउ ब्लैंक स्लाइड लेआउट जो होती है वो ऑफन यूज़ की जाती है जब आप कोई पिक्चर या फिर कोई दूसरा ग्राफिक ऑब्जेक्ट जो है उसको ज़रूरत होती है फर्दर ऑप्शन या फिर फर्दर इंफॉर्मेशन दिखाने की, ठीक है। ये इंसर्ट किया जाता है ताकि आप अपनी होल स्लाइड को क्या कर सको, कवर कर सको। नेक्स्ट आता है इसमें कंटेंट विद कैप्शन। कंटेंट विद कैप्शन जो होता है उसमें आप अपने कैप्शन को क्या करते हो, हाईलाइट करते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ आपका कंटेंट होता है, मतलब आपके राइट साइड में आपके पिक्चर्स होती हैं और लेफ्ट साइड में आपका उसके से रिलेटेड आपका टेक्स्ट होता है। नाइन्थ है आपका पिक्चर विद कैप्शन, ठीक है। जैसे ऊपर आपका कंटेंट विद कैप्शन है उसी तरह का ये भी सेम है। कंटेंट में आपका बाकी चीज़ें आती हैं, ग्राफिक आ जाता है, दूसरी चीज़ें आती हैं, लेकिन पिक्चर में आपकी पिक्चर्स आती हैं और फिर उसी के साथ आपका टेक्स्ट भी आता है। मतलब राइट साइड में आपकी पिक्चर होती है और लेफ्ट साइड में उससे रिलेटेड उसका टाइटल, उसका टेक्स्ट जो कि उस पिक्चर को क्या कर रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है। नाउ यूजिंग टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। अब आप कैसे टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को यूज़ कर सकते हो यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट, open MS PowerPoint and take a blank presentation. A new presentation of single slide with title slide layout appears. Second, on home tab in slides group, click on layout button. A list of slide layouts appears. Click on title and content layout option, or you can insert a new slides of title and content layout. Third, there are some icons at the center of the content area. These are the links to insert objects: table, chart, smart art, picture, online picture, video, 3D models and icons. Insert 3D models, etc. in the slide. Now let's start inserting the objects in the slide using these icons. Following steps are in continuation with inserting the title and कंटेंट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे हम टाइटल एंड कंटेंट को इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करोगे, ठीक है। उसमें आप अपनी स्लाइड बनाने के लिए पहले क्या करोगे, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लोगे, ठीक है। न्यू प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल स्लाइड जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, ठीक है, विद टाइटल स्लाइड लेआउट। फिर आप होम टैब पे जो कि आपका स्लाइड ग्रुप में आता है, ठीक है, फिर आप उसमें क्लिक करोगे लेआउट बटन पे। अ लिस्ट ऑफ स्लाइड लेआउट अपीयर्स। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट जो है वो अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अब इस लिस्ट में आप क्लिक करोगे टाइटल एंड कंटेंट लेआउट ऑप्शन पे, या फिर आप इंसर्ट कर सकते हो न्यू स्लाइड ऑफ टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। उसके बाद आप देखोगे कुछ आइकन्स आपके सामने सेंटर ऑफ द कंटेंट एरिया नज़र आएंगे, ठीक है। ये आपके लिंक होते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हो ना, ये उससे रिलेटेड क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। अब चाहे आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो, स्मार्ट आर्ट, ये सब इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम आगे जानेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी स्लाइड में यूजिंग दीज आइकन्स। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। नाउ इंसर्टिंग टेबल, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे अगर हमें अपनी स्लाइड में इंसर्ट करनी है एक टेबल तो कैसे करेंगे। You know that tables are used to represent the given data in the form of rows and columns. It is very useful in organizing and representing the data in an effective way. The steps to insert a table on the slide are after the first three steps. Fourth, on the title and content slide layout, click on table icon. The insert table dialog box appears.
Fifth, enter the required number of columns and rows and click on OK button. ऊपर बच्चों जैसे आपको दिए गए थे थर्ड स्टेप तक आपको सेम जाना है, ठीक है। फोर्थ आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको अगर किसी टेबल के माध्यम से अपने किसी डाटा को दर्शाना है रो एंड कॉलम्स में, तो आप उसको कैसे कर सकते हो। आप सबसे पहले जाओगे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट पे, उसके बाद आप टेबल आइकन पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आपके सामने टेबल डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप एंटर करोगे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, जितने भी आपको रोज एंड कॉलम चाहिए वो आप वहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप ओके बटन क्लिक करोगे। नाउ नोट, ऑल्टरनेटिवली क्लिक ऑन इंसर्ट टैब इन टेबल ग्रुप्स, क्लिक ऑन टेबल बटन्स, इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। अब आप अपने टेबल को टेबल बटन से भी, टेबल टैब से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको टेबल ग्रुप्स में जाना है, उसके बाद आप क्लिक करोगे टेबल बटन पे, तो इस तरह से आपको जितने भी रोज एंड कॉलम्स चाहिए ना बच्चों वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। कहाँ से? टेबल ऑप्शन से। अगेन नोट, when the table is selected, two tab appears on the ribbon. Design in PowerPoint 2019 update, it is table design and layout. You can use them to change the number of rows and columns. Design and other properties of table. Design tab contains the set of tables designing tools. Layout tab contains the set of table layouts and editing tools. ठीक है। यहाँ पे बच्चों नोट करने वाली बात है कि जब आप टेबल जो है सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो दो टैब जो है होती हैं वो अपीयर हो जाती हैं आपके रिबन में। एक होती है आपकी डिज़ाइन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका लेआउट। अब आप क्या कर सकते हो, इन्हें यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को क्या कर सको, चेंज कर सको, ठीक है। सपोज आपने 5 कॉलम्स डाल दिए, 5 रोज डाल दिए, आपको उतनी नहीं चाहिए, आपको उससे ज़्यादा चाहिए, तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो या उनको घटा या बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन टैब जो होती है वो कंटेन करती है आपकी सेट ऑफ टेबल डिज़ाइन टूल्स। इसमें आपके टेबल के डिज़ाइन होते हैं जिसमें से आप अपने टेबल के डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हो और उसके लेआउट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। नाउ एक एक्टिविटी हमें दी गई है यहाँ पे, ओपन MS PowerPoint एंड डू द फॉलोइंग एज पर द गाइडलाइन गिवन बिलो। First, insert a table of 6 rows and 3 columns in the slide. Merge the first row in one cell and enter the following text in it. Top 5 tennis players, and in the second row give column headings player name, country, ranking. Second, make a list of top 5 tennis players in the world. Third, select the table and apply a design. बच्चों आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी है, ठीक है। आपको कंप्यूटर ऑन करना है और आपको वहाँ पे MS PowerPoint को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे इंसर्ट करेंगे टेबल ऑफ 6 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है, किसमें, स्लाइड में। उसके बाद आप मर्ज करेंगे फर्स्ट रो को इन वन सेल एंड एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट। जब आप फर्स्ट कॉलम के जो सेल्स होंगे उन्हें आप मर्ज कर लोगे तो आप वहाँ पे टाइटल दोगे टॉप 5 टेनिस प्लेयर, ठीक है। सेकेंड रो में आप उसे टाइटल दोगे या वहाँ पे कॉलम हेडिंग दोगे प्लेयर नेम, कंट्री, रैंकिंग, ठीक है। इस तरह से आप टॉप 5 टेनिस प्लेयर की लिस्ट बनाओगे और आप वहाँ पे उसे डिज़ाइन करोगे। Now inserting chart. A chart is the pictorial graphical form to represent the data. When you need to describe the relation between two or more sets of values in your presentation, charts are probably your best option. The steps to insert a chart in the slide are after the first 3 steps. Fourth, on title and content slide layout, click on chart icon or on insert tab. In illustrations group, click on chart button. Fifth, select the chart type in the left pan and the subtype of the select chart in the right pan. For example, select the column option in left pan and its first subtype in the right pan. Click on OK button. Sixth, the chart is displayed with a data sheet in MS Excel that contains the default data on which chart is created. Seventh, change the default data. To change the data in the sheet, do the following. Click on a cell and type the new data. This action will replace the old data with new data. For example, click on A2 cell and type monitor. Press down arrow key plus and type CPU. Eighth,
As you can change the data in the data sheet, the column in the charts also changes. After entering the data, close the data sheet. See the figure that follows for further reference to enter the data. Formatting the chart. Once the chart is inserted in the slide, it can be formatted by changing its title bar, line, colors, बॉर्डर स्टाइल, डेटा सीरीज एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, आपने टेबल इंसर्ट कर दी। अब यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम अपने स्लाइड में चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। बच्चों चार्ट जो होता है वो आपका पिक्टोरियल या फिर ग्राफिक फॉर्म होता है किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का। जब आपको दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन शो करना होता है तो चार्ट जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, पहले आपको जो 3 स्टेप्स थे वो पहले के जो हैं आपके वो आपको फॉलो करने हैं जो आपने टेबल पे किए थे। ठीक है, अब आप आएंगे 4th स्टेप से। ऑन द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट आपको क्लिक करना है किस पे, चार्ट आइकन पे। ठीक है, या फिर आप इंसर्ट टैब पे भी जा सकते हैं। ठीक है, इन इलस्ट्रेशन ग्रुप, और उसके बाद आप चार्ट बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप सेलेक्ट करेंगे चार्ट टाइप। ठीक है, वहाँ पे आपको प्री डिफाइंड चार्ट के आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको वहाँ पे चार्ट टाइप पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, कहाँ पे, अपने लेफ्ट पैन पे। ठीक है, और जो सब टाइप ऑफ द सेलेक्टेड चार्ट है इन द राइट पैन। ठीक है, लेफ्ट पैन से आप चार्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड में से आप उस चार्ट का सब टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आपको कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है इन द लेफ्ट पैन एंड उसके जो फर्स्ट सब टाइप है वहाँ पे आपको राइट पैन पे उसको क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर आप जो चार्ट है आप देखोगे वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा डाटा शीट के साथ। ठीक है, जो कि आपके डाटाज जो होंगे वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहे होंगे। फिर आप चेंज करेंगे अगर डाटा को, तो आप देखोगे आपका जो डाटा है वो चार्ट में भी क्या हो रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा। मतलब वो चेंज वाला डाटा आपके चार्ट में भी डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, अब डाटा को कैसे आप चेंज कर सकते हैं अपनी शीट पे, आपको सेल और टाइप पे जो न्यू डाटा है उसको टाइप करना है। पहले आप सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी डाटा आप उसमें डालना चाहते हो आप वहाँ पे वो डाटा डाल सकते हो। ठीक है, उससे आप क्या करोगे, जो आपका ओल्ड डाटा है वो रिप्लेस हो जाएगा और आपका न्यू डाटा वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप प्रेस डाउन एरो की और उसके बाद आप प्रेस करोगे और टाइप करोगे CPU। फिर आप देखोगे जो डाटा है वो आपके डाटा शीट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और जो कॉलम्स हैं चार्ट में वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब आप डाटा एंटर कर लोगे तो आप डाटा शीट को क्या कर लोगे, क्लोज कर लोगे। फिर आप देखोगे फिगर, यहाँ पे आपको फिगर दिख रही है जो कि आपको रेफरेंस के लिए दी गई है कि इस तरह से आपका डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। फिर आप अपने चार्ट को फॉर्मेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें आप फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, उसके टाइटल को चेंज कर सकते हो, बार, लाइन, कलर, बॉर्डर स्टाइल, ये सब आप चेंज कर सकते हो। नोट, select the chart to format. A set of chart tools appears on the ribbon. It contains 2 tabs. Design in PowerPoint 2019 update. It is chart design and format. These tabs contain the sets of tools to change and design and format the chart. Design tab contains the tools to change the chart layout, chart style, change chart type and change the chart data. Format tab contains the tools to modify the chart outline, format the chart text, shape, style, etc. ठीक है, अब किसी भी चार्ट के फॉर्मेट को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, फिर सेट ऑफ चार्ट टूल्स जो होते हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे, कहाँ पे, रिबन में। ठीक है, इसमें आपके 2 टैब्स होती हैं, एक होता है आपका डिज़ाइन टैब और दूसरा होता है आपका फॉर्मेट टैब। ठीक है, जिसमें आप अपने चार्ट को क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये जो टैब्स होती हैं ये आपके सेट ऑफ टूल्स के साथ आती हैं जिसमें से आप अपने चार्ट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, उसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन टैब जो होता है उसमें आपके टूल्स होते हैं जो कि आपके चार्ट लेआउट को, चार्ट स्टाइल को और उसके टाइप को चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेट टैब जो होती है उसमें आपके टूल्स होते हैं जो कि आपके चार्ट के आउटलाइन को, फॉर्मेट को, चार्ट टेक्स्ट, शेप, स्टाइल को फॉर्मेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ एक्टिविटी, open MS PowerPoint and do the following as per the guidelines given below. Insert a 3D pie chart
यूज द डेटा एज यू यूज्ड इन द इंसर्टिंग चार्ट टॉपिक इन दिस बुक। अब बच्चों आपको फिर से अपने कंप्यूटर पे MS पावरपॉइंट स्लाइड खोलनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये गाइडलाइन जो है उनको फॉलो करना है। आपको इंसर्ट करना है वहाँ पे 3D पाई चार्ट, ठीक है। उसके लिए अब डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा आप वही डेटा यूज़ करोगे जो आपने चार्ट टॉपिक के लिए यूज़ किया था। Now inserting a smart art graphic. A smart art graphic is a visual representation of your information to effectively communicate your message or ideas. Smart art allows you to communicate information with graphics instead of just using text. Traditional bulleted points can be transformed into eye-catching smart art graphic. The steps to insert a chart on the slides are after the first 3 steps. 4. On title and content slide layout, click on Smart Art graphic icons, or on Insert tab in Illustration group, click on Smart Art button. The Choose a Smart Art graphic dialog box appears. There are variety of smart art styles to choose from, which you can use to illustrate many different types of ideas. 5th, select the smart art layout in the left pane and its subtype in the right pane. For example, select cycle in the left pane and diverging radial on the right pane. Click on OK button. 6th, the selected smart art graphic is inserted in the slide. Click on the text on the inserted smart art graphic one by one and enter your text. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैसे हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पावरपॉइंट स्लाइड में। एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है एक तरह का आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली क्या करता है, प्रेजेंट करता है विद अ मैसेज और आइडिया। स्मार्ट आर्ट जो होता है वो अलाउ करता है आपकी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए विद ग्राफिक इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग टेक्स्ट, ठीक है। इसमें आप ग्राफिक के थ्रू इजीली अपने टॉपिक के बारे में समझा सकते हैं या आपका टॉपिक क्या कहना चाह रहा है ये आपके ये ग्राफिक बहुत अच्छे से बताते हैं, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल बुलेटेड पॉइंट आते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू आई कैचिंग स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, ठीक है। अगर आप बोरिंग से टेक्स्ट वहाँ पर डाल दोगे तो आप शायद उसको पढ़ने में आपको वो इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन अगर आप ग्राफिक्स वगैरह ऐड करते हो तो आपकी स्लाइड जो होती है बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो ये चार्ट्स को ऑन स्लाइड्स, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले जो आपने 3 स्टेप्स फॉलो किए थे वहाँ तक तो आपको 3 स्टेप्स सेम करते हुए आना है, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट पे और आप क्लिक करोगे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आइकन पे और आप जाओगे किस पे, इंसर्ट टैब पे, ठीक है, इन इलस्ट्रेशन ग्रुप और क्लिक करोगे वहाँ पे स्मार्ट आर्ट बटन पे। फिर आप जो भी स्मार्ट आर्ट आपको चाहिए आप वहाँ पे चूज़ करोगे, कहाँ से, ग्राफिक डायलॉग बॉक्स में से जो कि आपके सामने अपीयर हो रहा होगा जिसमें आपके बहुत सारी स्मार्ट आर्ट्स अपीयर हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ स्मार्ट आर्ट्स देखने को मिलेगी, उसमें से आप जो भी स्मार्ट आर्ट चूज़ करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब आपकी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जो है इंसर्ट हो जाएगी जो आपने सेलेक्ट की थी, ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट बटन पे, ठीक है, जो कि आपके इंसर्टेड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में आपको नज़र आ रहा होगा। फिर आप 1 बाय 1 अपने टेक्स्ट को एंटर करेंगे और फिर इस तरह से आपकी स्लाइड में आपका जो ग्राफिक है वो क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। When the smart art graphic is selected, a set of smart tools appear on the ribbon. It contains 2 tabs, Design. In PowerPoint 2019 update, it is Smart Art Design and Format. These tabs contains the sets of tools to change the design and format the chart. Design tab contains the tools to change the smart art graphic layout, smart art style, etc. बच्चों जब आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो फिर एक सेट ऑफ स्मार्ट आर्ट टूल जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाता है आपके रिबन पे जो कि आपके 2 टैब्स को दर्शाता है, ठीक है। अब इसमें आपके बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं और ये जो टैब्स होती हैं ये कंटेन करती हैं सेट्स ऑफ टूल्स ताकि आप अपने डिज़ाइन को या फिर अपने चार्ट के फॉर्मेट को क्या कर सको, चेंज कर सको। जो डिज़ाइन होती हैं ये कंटेन करते हैं आपके टूल्स टू चेंज द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक लेआउट, स्मार्ट आर्ट styles, etc. Note: Format tab contains the tools to change the shape styles, shape, outline, shape color,
टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। बच्चों जो फॉर्मेट टैब होती है उसमें आपके तरह तरह के टूल्स होते हैं जो कि आपके शेप स्टाइल को, शेप को, आउटलाइन को, शेप कलर और टेक्सटाइल को चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ देयर इज एक्टिविटी गिवन। एक्टिविटी: open MS PowerPoint and do the following as per the guidelines given below. First, insert smart art cycle arrow process of cycle category. Second, change the color of the smart art and enter the text as shown in figure. बच्चों ये आपके लिए एक्टिविटी है। आपको अपना MS PowerPoint का जो आपने पहले फाइल सेव की थी उसको आपने दोबारा से ओपन करना है, ठीक है। और आप वहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे स्मार्ट आर्ट। अब कौन सी स्मार्ट आर्ट आप इंसर्ट करेंगे, साइकिल एरो प्रोसेस की ऑफ साइकिल कैटेगरी, ठीक है। फिर इसमें आप अपने स्मार्ट आर्ट के कलर को चेंज करेंगे और वहाँ पे अपना टेक्स्ट क्या करेंगे, एंटर करेंगे। नाउ इंसर्टिंग पिक्चर्स। You have already learned about inserting a picture through picture tool from insert tab in previous class. Let's recall this topic. The steps to insert a picture in the slides are after the first 3 steps. 4. On title and contents slide layout, click on insert pictures icon. The insert picture dialog box appear. 5th, locate and select the picture and click on insert button. Picture is inserted in the slide. ठीक है। अगर आपको अपनी स्लाइड में पिक्चर एंटर करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले तो जो आपके 3 स्टेप्स थे वहाँ तक तो आपको सेम ही फॉलो करना होगा। देन आपको 4th स्टेप में जाना होगा अपने टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट में, उसमें आप क्लिक करोगे इंसर्ट पिक्चर आइकन पे, ठीक है। फिर इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। फिर आपको लोकेट करना है और सेलेक्ट करना है पिक्चर को, ठीक है। फिर आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे और जो पिक्चर है वो आपकी स्लाइड में क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। नोट: व्हेन द पिक्चर इज सेलेक्टेड ऑन द स्लाइड, a set of picture tools appear on the ribbon that contains the format. In PowerPoint 2019 update, it is picture format tab. You can format the pictures using the tools available in format tab. बच्चों यहाँ पे नोट देने वाली बात यह है कि जब आप किसी पिक्चर को सेलेक्ट करते हो और उसे स्लाइड में लगाते हो, ठीक है, तो आपके सामने रिबन पे पिक्चर टूल्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स से रिलेटेड टूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ करके अपनी पिक्चर को मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ इंसर्टिंग वीडियो। वीडियो कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम अ फाइल in your PC or online from web in the slide. Here you will learn about inserting a video from a file. The steps to insert a video in the slides are after the first 3 steps. 4. On title and content slides layout, click on videos icon, select from a file option in the insert video dialog box. 5th, locate and select the video and click on insert button. A black rectangular area is inserted in the slide in which the video will be played. 6th, hover the mouse over the black rectangular area. The controls to play the video are displayed. 7th, click on play button to play the video. ठीक है। अब हम अपनी स्लाइड में वीडियोस भी डाल सकते हैं, ठीक है। वीडियोस आप चाहो तो अपने पीसी में किसी फाइल से भी डाल सकते हो या फिर आप वेब से भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे आप वीडियो को फाइल से डाल सकते हो अपनी स्लाइड में, ठीक है। इसमें आपके जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं वो सेम ही हैं। हम 4th से स्टार्ट करेंगे। आपको 4th में जाना है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट पे, उसके बाद आप क्लिक करोगे वीडियो आइकन पे, ठीक है। फिर जो भी फाइल आपको वहाँ से चाहिए आपके सामने वहाँ पे डायलॉग बॉक्स एक अपीयर हो जाएगी। आपको लोकेट करना है और फिर सेलेक्ट करना है वीडियो को, ठीक है। फिर आप इंसर्ट बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर आप देखोगे आपके सामने एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगुलर एरिया जो है वो इंसर्ट हो जाएगा आपकी स्लाइड में, ठीक है, जिसमें आपका वीडियो जो है वो प्ले होगा। आपको अपना माउस जो है वो उसके ऊपर लेके जाना है, ठीक है। कहाँ पे, उस ब्लैक रेक्टेंगुलर एरिया पे। ये जो है ये कंट्रोल करेगा आपके वीडियो को कि कैसे उसे प्ले करना है और कैसे वहाँ पे उसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। देन आप क्लिक करेंगे प्ले बटन पे टू प्ले द वीडियो और आपकी वीडियो जो है वो आपकी स्लाइड में क्या हो जाएगी, प्ले हो जाएगी। नोट: when the video area is selected on the slide, 2 tabs appear on the ribbon.
Format in PowerPoint 2019 update, it is video format and playback. Format tab contains the tools to change the video area, style, preview, etc. Playback tab contains the tools to set video options, preview, video editing, etc. बच्चों यहाँ पे नोट देने वाली बात है, जब आपका वीडियो जो है आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, तो आपके सामने रिबन पे दो टैब्स अपीयर हो जाती है. कौन कौन सी? एक होती है आपकी फॉर्मेट और दूसरी होती है आपकी प्लेबैक. ठीक है, फॉर्मेट टैब जो होती है वो कंटेन करती है बहुत सारे टूल्स जिसमें आप अपने वीडियो एरिया को चेंज कर सकते हो, उसके स्टाइल, उसके प्रीव्यू एक्सेट्रा को आप चेंज कर सकते हो. प्लेबैक जो टैब होता है उसमें आपके बहुत सारे टूल्स कंटेन होते हैं जिसमें आप अपने वीडियो ऑप्शन को सेट कर सकते हो, प्रीव्यू, वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो. नाउ इंसर्टिंग ऑडियो. You can insert audio music in the slide. The steps to insert, add an audio are: first, select the slide on which you want to add the audio file and click on Insert tab. Second, in Media Group, click on Audio button and select Audio on My PC option. The Insert Audio dialog box appears. Third, locate the audio file and click on Insert button. Fourth, a sound icon appears on the slide and Playback tab activates on the ribbon. Fifth, on Playback tab in Audio Styles group, click on Play in Background button. Now run the slideshow. The inserted audio file will run automatically. बच्चों आपको अपनी स्लाइड में कोई ऑडियो डालना है, ठीक है, सपोज आपकी स्लाइड चल रही है और पीछे से उसके ऑडियो भी प्ले हो रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप वहाँ पे ऑडियो इंसर्ट कर सकते हो अपनी स्लाइड में. कोई भी म्यूजिक डाल सकते हो या कोई भी ऑडियो आप रिकॉर्ड करके डाल सकते हो. इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वो स्लाइड सेलेक्ट करनी है जिसमें आप ऑडियो फाइल अपनी डालना चाहते हो, ठीक है, और आप क्लिक करोगे इंसर्ट टैब पे. अब मीडिया ग्रुप में आप क्लिक करोगे ऑडियो बटन पे, ठीक है, फिर आप एक ऑडियो को सेलेक्ट करोगे माय पीसी ऑप्शन से. फिर आपके सामने इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, ठीक है. फिर आप लोकेट करोगे ऑडियो फाइल को और क्लिक करोगे इंसर्ट बटन पे. एक साउंड आइकन अपीयर हो जाएगा आपके सामने आपकी स्लाइड पे, ठीक है, और प्ले बैक टैब एक्टिवेट हो जाएगा आपकी रिबन पे. फिर बच्चों प्ले बैक टैब पे किसमें, ऑडियो स्टाइल ग्रुप में आप क्लिक करोगे प्ले इन बैकग्राउंड बटन, ठीक है, क्योंकि आप उसे बैकग्राउंड में चलाना चाहते हो. आपके पहले क्या चल रही है, स्लाइड चल रही है, तो आप पीछे से अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाना चाहते हो तो उसमें आपको प्ले इन बैकग्राउंड बटन चूज करना पड़ेगा, ठीक है. फिर जब आप अपनी स्लाइड को रन करोगे तो आप देखोगे आपकी जो ऑडियो फाइल है वो भी ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, रन कर रही है पीछे से. Now points to remember. A slide layout is the arrangement of all the objects on a slide. A table is used to represent a given data in the form of rows and columns. A chart is the pictorial graphical form to represent the data. A smart art graphic is a visual representation of your information to effectively communicate your message or ideas. Video can be inserted from a file in your PC or online from web in the slide. You can insert audio music in the slide that can be run during the presentation in the background. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the given exercise by yourself.